virtual online lectures. Myself, Gayatri Dilip Kumar Brag from Goregaon MPS Municipal Secondary School, and today we are going to proceed with our uh, yesterday's chapter, that is the political science chapter number 3, India's defense system. Okay. Now, first we will remind the yesterday's lesson, that in the last lesson or in the last lecture we had discussed about the work of defense system, that how the defense system is important for every country, and every country have to be a strong defense system. And for the work of defense system is to defense from foreign aggressions, and defense from internal unrest, and keeping borders safe. And after that we had studied about what is national security. National security system means to save the sovereign nations, the sovereignty of nations. What is the meaning of sovereignty of nations? That means the nations who are independent and they can take their own decisions, and without taking any help from other nations. After that, we had discussed about the national boundaries, how the national boundaries have to be secure from the external threat. And there are different types of conflicts which are the results of this war, or we can say conflicts, and the conflict about the over water sharing. After that, the entry of refugees to any country, and these conflicts can be settled by the compromises and by the taking different types of decisions. After that, different type of efforts are not enough. Then what happens? Then war will be there, or sovereignty of any country is in danger, and is endangers the security of nation also. It means, what is national security? That means national security can be defined as the country's need to maintain its survival by using of military, political and economic power for diplomacy. Okay. After that, we had studied about ways to safeguard our national security. How we can save our national security. So different type of different points to are we are discussed, in which first point was the secure national geographic boundaries. Second one, use modernized weapons in defense forces. And third one, resolve conflicts by talking, and if necessary, take support of other nations. Okay. We had discussed about the geographical boundaries are the source of threat, means the external enemies can come to our country through the geographical boundaries. So we have to take care of our boundaries. After that, if any war is there and if any enemy will attack on us, then military force is very important, and it is very important to use modern weapon system in the military forces. After that, we had discussed that to resolve different conflicts, the relation of different countries should be good, and for that discussions are very important. And to save our country, we can take help from other countries also. For example, like Bhutan and Nepal take help of India to resolve their conflicts or their problems. After that, we had discussed about India's security system. So every country have a strong security system, and this security system, three type of forces are working there. First one is the army, for the navy and the air force. Now we had discussed that Indian army protecting geographical boundaries, means on land they are working and they are protecting our country. Uh, or we can say that they are doing their work on the boundaries, and they are protecting our countries from the geographical boundaries. Okay. Second one, that is Indian navy, because our India is covered by from three part of water, and that's why our coastal area is very big, and the work of navy is to protect our coastal line. Third one is our Indian Air Force, which protects our airspace, the attacks which help from the air.
So our Indian Air Force protect our country from the airspace. After that, we had discussed that Chief of Army is known as General, and today our Chief of Army Staff is Manoj Mukund Naravne. After that, we had discussed that Chief of Navy Staff, and today our Chief of Navy Staff is Admiral Karambir Singh. The Chief of Air Force Staff is known as Air Chief Marshal, and today our Air Chief Marshal is Rakesh Kumar Singh Bhaduria. And these all three chiefs are appointed by the Honorable President. So it is considered that the our Honorable President is the Supreme Commander of the Defense Forces. So as these three commanders are there, but they can't take any decision for the forces. It means they can't tell anything about the war, or if there is a war, and they can't tell anything about the peace. And so every decision should be taken by Honorable President. Because our India is a democratic country, so here the civil power is more superior than the military power. Okay, so it is very important to the chief to report to the defense minister or to the ministers. They only allow the reports of the ministers, and all ministers are giving report to the president. It means what the president says, only the chief will do what they are doing. Okay. After that, many measures are taken to so that all three defense forces in India security system are inadequately modernized. Research institute like DRDO help to defense system or defense force. In that case, we had discussed that BrahMos or Agni missiles, which are uh, made in this DRDO, that is the Defense Research Development Organization, and they help to make these missiles. After that, NDA is there, where students take drills, the various type of drills, or some defense equipment they are there, and they practice there, and they can take appointment in this defense system. After that, National Defense College is there, where student take admissions to work for their country. After that, we had discussed about paramilitary forces. There are different paramilitary forces in which the border security force is there, coastal guard is there, the central reserve police force is there, and rapid action force is there. The duties of these paramilitary forces are far different from these military forces, because military forces only guard the boundaries of the country, but these forces uh, works in the internal part of the country. जो भी इंटरनल पार्ट है, जो भी अंदर की कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करने का काम ये पैरामिलिट्री फोर्सेस करती हैं. तो जहां तक हो सके तो सारा काम पैरामिलिट्री फोर्सेस करती हैं, और जब कोई काम ऐसा हो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा नहीं हो सकता, वहां पे जो है मिलिट्री फोर्सेस काम करना स्टार्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, BSF इज देयर, CRPF इज देयर. So these are the different paramilitary forces are there. So what is the work of these paramilitary forces? So these paramilitary forces works on railway stations, oil depots, water reserves, means on dams. After that, management of natural or man-made disaster, protecting international boundaries. All these are the work of paramilitary forces. Now the paramilitary force, in which first force is the border security force, which is known as BSF also. The function of this paramilitary, that is border security force, is security of the people living near the border. जो भी लोग बॉर्डर्स के पास में रहते हैं, उन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये BSF का काम होता है. सेकेंड वन, प्रिवेंटिंग स्मगलिंग. जो भी स्मगलिंग होती है बॉर्डर्स के थ्रू, उनको प्रिवेंट करना या फिर उनको रोकना काम जो है वो BSF का होता है. लास्ट वन इज पेट्रोलिंग. पेट्रोलिंग होती है, मतलब वो तैनाती देते हैं कि वहां से
कोई वहाँ दूसरे कंट्री के जो लोग हैं वो कहीं पे या फिर आतंकवादी बोल सकते हैं, फिर घूसखोरी बोल सकते हैं, तो घूसखोर इस टाइप के लोग जो हैं वो सब हमारी कंट्री में ना एंट्री कर सकें। ओके, नेक्स्ट वन इज द कोस्ट गार्ड। And the function of coast guard is protect India's oceanic borders because मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा इंडिया जो है वो 3 पार्ट से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए बहुत बड़ा पार्ट जो इंडिया का है वो ओशन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इनकी ड्यूटी बहुत बढ़ जाती है। दे सो द कोस्टल गार्ड प्रोटेक्ट्स आवर ओशनिक बॉर्डर्स, also they protect the fishing occupation because so many people are doing the fishing work of from the coastal area। कोस्टल एरिया पे जो भी लोग रहते हैं उनका मेजर बिजनेस जो होता है, मेजर काम जो होता है वो होता है उसका फिशिंग। तो फिशिंग जो करने जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनके काम को प्रोटेक्ट करना, ये सब कोस्टल गार्ड्स का काम होता है। आफ्टर दैट प्रिवेंटिंग स्मगलिंग अलोंग द सी में से होने वाले जो स्मगलिंग है उनको रोकने का काम भी कोस्टल गार्ड्स करते हैं। आफ्टर दैट द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स दैट इज CRPF। What is the function of this CRPF? They maintain law and order in all states। सारे के सारे स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम सीआरपीएफ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे इलेक्शंस चलते हैं तो वहां पे सीआरपीएफ की फोर्स को बुलाया जाता है। आफ्टर दैट कहीं पे दंगे हो जाए तो अगेन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर दिस सेंट्रल रिजर्व पुलिस वर कॉल्ड at that place। Okay, next is the rapid action force। The rapid action force protect people lives from incidents like bomb blast or riots etc। It means what कि rapid means quick action force। ये बहुत ही जल्दी आके काम करने वाली फोर्स होती है, इसलिए कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो या फिर कहीं पे स्ट्राइक्स हो या फिर दंगे हो, ऐसी जगह पे इन फोर्स को बुलाया जाता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स जो होती है ये सबसे पहले वहां पे तैरा के काम करती है। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट एनसीसी दैट इज द नेशनल कैडेट क्रॉप्स। एनसीसी जो आप बहुत से बच्चों को पसंद भी होती है, स्कूल लेवल पे हम लोग स्काउट एंड गाइड्स में पार्टिसिपेट करते हैं एंड एट द लेवल ऑफ कॉलेज लेवल वी पार्टिसिपेट और टेक पार्टिसिपेशन इन एनसीसी। एनसीसी पे लोग भर्ती होते हैं या फिर पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ पे वो सीखते हैं कि हाउ वी लव आवर नेशन एंड व्हाट आर आवर ड्यूटीज इन रिगार्ड्स टू नेशन। हमारी ड्यूटीज क्या है नेशन को लेके, हमको कैसे डिसिप्लिन में रहना है, और उसी के साथ में वो वहां पे मिलिट्री ट्रेनिंग भी लेते हैं। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट होम गार्ड्स। So the work of home guards to maintain public security, supply of milk, water, etc. during riots and strikes, regulate traffic, helps people to natural or man-made disaster। All these are the work of home guards। होम गार्ड्स का काम होता है कि वो पब्लिक की सिक्योरिटी, जैसे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं वहां पे बाहर पे होम गार्ड्स की ड्यूटी लगी होती है टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द दैट टेम्पल। ठीक है, इसलिए वहां पे होम गार्ड्स होते हैं। उसके बाद में कहीं भी पे दंगे हो जाए, स्ट्राइक्स हो जाए तो जो कर्फ्यू लग जाता है तो कर्फ्यू के समय पे लोगों तक दूध पहुंचाना, पानी पहुंचाना, खाना पहुंचाना, ये सारा काम जो है ये होम गार्ड्स करते हैं। आफ्टर दैट ट्रैफिक रेगुलेट करते हैं। इट मीन्स व्हाट, देखिए जैसे गणपति के दिन होते हैं तब आप देखिए कि ट्रैफिक बहुत जाम हो जाती है, तो ट्रैफिक को मेंटेन से सही से करने के लिए ये जो होम गार्ड्स है वो काम करते हैं। वो लोगों की हेल्प भी करते हैं कि आपको किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से नहीं जाना है, ये सारा जो काम है ये सारे होम गार्ड जो है वो करते हैं। लास्ट वन, दे हेल्प पीपल ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर। जो भी डिजास्टर होते हैं, मे बी दे आर मैनमेड और नेचुरल डिजास्टर, दीज होम गार्ड हेल्प पीपल टू मेंटेन द their discipline or maintain the law। Okay, now today we will start with the next point, that is challenges to India's security। What are the different challenges before India's security? That is, first one is disputes between India and Pakistan। Second one, disputes between India and China। Third one, threat of internal security। And fourth one is terrorism।
ओके, इसका मतलब है कि हमारे सामने, इंडिया के सामने उसकी सिक्योरिटी को लेके 4 challenges, these are the 4 major challenges are there. फर्स्ट वन, डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान में सबसे सबसे ज्यादा डिस्प्यूट है, सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, और उनके कारण क्या है? फर्स्ट वन इज कश्मीर इशू, सेकंड वन इज रिवर वाटर शेयरिंग, थर्ड वन इज इन्फ्लेटेशन, एंड लास्ट वन इज एक्सपेंशन ऑफ बॉर्डर्स। All these are 4 points are responsible for the conflicts between India and Pakistan. इंडिया और पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो झगड़े का कारण है, या फिर डिस्प्यूट्स या फिर कॉन्फ्लिक्ट का मतभेद जिसको हम बोलते हैं, उसका कारण है कश्मीर इशू। ओके, दे आर टेलिंग दैट कश्मीर इज in their part a part of their nation, means Pakistan nation, but we are saying no, Pakistan, कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसी को लेके बहुत ही सालों से ये जो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहा है, वो आज भी चल रहा है। तो ये सबसे बड़ा डिस्प्यूट है या फिर कॉन्फ्लिक्ट है। सेकेंड वन है रिवर वाटर शेयरिंग। As I told you in the last lecture that river Indus or river Chambal is flowing बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऐसी नदियां जो है, सतलुज नदी है ये जो बह रही है, तो इनसे, या फिर इंडस नदी है ये जो बह रही है, तो इनका जो पानी है, इनकी जो पानी की शेयरिंग है, इसको लेके भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इंडिया वाले बोलते हैं कि हम यूज करेंगे, और पाकिस्तान वाले बोलते हैं हम यूज करेंगे, बट इट इज फ्लोइंग बिटवीन बोथ द कंट्रीज। दोनों की कंट्री के बीच में से ये बह रही है, इसलिए इसके ऊपर भी बहुत सारे मतभेद हैं। ओके, थर्ड वन इन इन्फेड्रेशन। इन्फेड्रेशन मतलब घूसखोरी। जो लोग हैं वहाँ के आतंकवादी बोल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे कंट्री को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हमारी कंट्री को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो वो लोग घूसखोरी करके चोरी चुपके से वो हमारे देश में घुस जाते हैं थ्रू बॉर्डर्स। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में एज ए कॉन्फ्लिक्ट वर्क कर रहा है। और लास्ट वन इज एक्सटेंशन ऑफ बॉर्डर्स। अपनी जो सीमाएं हैं वो बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान की जो बातें हैं कि वो चाहते हैं कि इंडिया की बहुत सारी जो कश्मीर, जो हमारा नॉर्थ पार्ट है कश्मीर का, वो उनकी तरफ दे दिया जाए। वो अपनी बाउंड्रीज जो है वो एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर से भी डिस्प्यूट जो है या फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है। दिस इज द फर्स्ट मेजर चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडिया फॉर इंडिया सिक्योरिटी। नाउ सेकंड वन इज डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। Okay, in some days before or some months before, we are saying there is a very much tension between India and China. ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा टेंशन स्टार्ट हुआ था, जिसके कारण आपको मालूम भी होगा कि इंडिया में चाइना से बनने वाला जितना भी मटेरियल है वो बंद हो गया, या फिर हमें बताया गया कि हमारे मोबाइल फोन में अगर चाइना के ऐप्स है तो वो बंद कर दिए जाए, चाइना की मोबाइल्स बंद किए जाए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है वो इन बातों को दिखाने की कोशिश करती है कि देखिए किस तरह से हमारे और उनके बीच में मतभेद है। ठीक है, why it is so? Because China wants to hegemony over countries, because China wants to rule all over the world, or we want to be a supreme power. ओके, चाइना वांट्स टू बी अ सुप्रीम पावर। उसको अपने आप को एक सुप्रीम पावर शो करना है, इसलिए वो कभी भी किसी भी देश पे अपना पावर जो है वो शो करता है। सेम हैपन विद इंडिया एंड चाइना आल्सो। ओके, नाउ चाइना वांट्स टू एक्सपेंड देयर बाउंड्रीज आफ्टर। जो हमारे पीछे कुछ महीनों में जो केस चल रही है वो यही है कि चाइना वांट टू एक्सपेंड देयर बाउंड्रीज। चाइना अपनी बाउंड्रीज जो है वो एक्सपेंड करना चाहती है, वो आगे आगे बढ़ाना चाहती है कि नहीं ये एरिया हमारे तक है, नहीं ये एरिया हमारे तक है। तो इस तरह से वो इंडिया पे भी अपनी बाउंड्रीज जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। तो दिस इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया और चाइना के बीच में ये जो पॉइंट्स है ये लेके बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो रहा है, और इससे हमारे इंटरनल जो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम है वो एक चैलेंज के सामने एक चैलेंज की जैसे काम कर रही है। ओके, नाउ थर्ड वन इज इंडिया थर्ड फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी। दो
the matter of Pakistan or matter of China. These are the external इनसिक्योरिटीज. ये एक्सटर्नल इनसिक्योरिटीज है जिससे कि हमको सिक्योर करना है. बट व्हाट वी विल डू इफ देयर इज अ इंटरनल सिक्योरिटी. अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे देश के अंदर ही हैं, उसको हमें सॉल्व करना बहुत जरूरी है. एंड इन दैट केस देयर इज द फर्स्ट वन इज रिलीजन. जो धर्म है, धर्म को लेके भी लोगों में बहुत सारे मतभेद होते हैं. Someone says we are Hindu, someone says we are Muslims, some and all other religion also says we are from this religion or we are from that religion. And बहुत सारे ऐसे झगड़े हैं जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में हुए हैं. ठीक है, अभी हमारे जो केस चल रहा था राम मंदिर का, अभी आपने देखा है कि हाल ही में वो अभी केस बंद हुआ है और वहां पे वो जो जगह है वो राम मंदिर को दी गई. तो ये क्या है, ये रिलीजन को लेके ही एक हम जो इनसिक्योर. ठीक है, क्यों हम लोग एक ही देश में रहने वाले लोग हैं, हम एक ही यूनिटी के इसमें रहने वाले लोग हैं, फिर भी हमारे अंदर धर्म को लेके जो है वो मतभेद है. दैट इज द इंटरनल इनसिक्योरिटी. ओके. सेकंड वन इज रीजनलिज्म. वही धर्म, जात, समाज, इसको लेके जो है अभी भी हमारे देश में जो है समाज जो है वो बंधे बंधे हुए हैं. हम इस समाज से रेफर करते हैं, हम उस समाज से रेफर करते हैं, या फिर अगर बड़े हो जाए तो एक समाज की लड़की को दूसरे समाज के लड़कों में शादी नहीं कर सकते हैं. तो ये सब जो चीजें ये रीजनलिज्म में आते हैं. दिस इज इनसिक्योरिटी है. आफ्टर दैट रिबेलियस मूवमेंट. रिबेलियस मूवमेंट्स का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज से अगर हमको स्वतंत्रता चाहिए तो हम उसके लिए आवाज उठाते हैं. ओके. बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके लिए हमको आज भी आवाज उठानी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, हमको अगर हम महिलाएं हैं तो हमको अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी आवाज उठानी पड़ती है. बहुत सारे स्टेट्स में आज भी महिलाएं जो है वो सिक्योर नहीं है. ओके. तो ये सारी चीजें जो है वो मूवमेंट में आती है. आफ्टर दैट इकोनॉमिक inequality. So many states are there which are equally economically strong, but some states are there very poor in economic field. इकोनॉमी के फील्ड में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत पीछे हैं, अभी तक आगे नहीं आ पाए. तो इसके कारण भी हमारे देशों में, हमारे देश के राज्यों में इनइक्वालिटी हमको देखने को मिलती है. एंड लास्ट वन इज नक्सलाइट मूवमेंट. जो नक्सलवादी हैं वो हमारे देश का, एज यू सी ऑन द स्क्रीन, जो हमारा देश का एक पार्ट है वो टोटली नक्सलाइट मूवमेंट से घिरा हुआ है, नक्सलाइट से घिरा हुआ है. और ये व्हेन जब ये रिफ्यूजीज आए थे जो वेस्ट बंगाल से जब इंडिया में आए तो उन्होंने अपना एक अलग सा पार्ट बनाना स्टार्ट कर दिया. एंड दे बिकम नक्सलाइट. वो नक्सलाइट नक्सलिज्म में चले गए, नक्सलाइट हो गए. और इनसे आज भी हमारा देश जो है वो बहुत ज्यादा जूझ रहा है इन प्रॉब्लम से. कि नक्सलाइट है वो लोगों को इम्प्रेस करते हैं, वो लोगों को बताते हैं कि नहीं, आपको ये देश कुछ नहीं दे रहा है, अगर आप हमारी तरफ हो जाओ तो हम अपना एक अलग सा देश बनाएंगे, हम अपने अलग से रूल्स बनाएंगे. तो इसलिए ये सो डिस्प्यूट्स है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये हमें इंटरनली ही प्रॉब्लम दे रहे हैं. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एज यू सो ऑन द स्क्रीन, कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वो हमें कितनी देखने को मिलती है. कि हर जगह पे देखिए कलर्स आर वेरी डिफरेंट, अलग आपको दिखेंगे. सी द पॉवर्टी इन इंडिया. इंडिया में बहुत ही गरीबी है. तो ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही एक चैलेंज की बात है कि किस तरह से हमको अपने देश से गरीबी हटानी है, किस तरह से हमारे देश में हमको टेक्नोलॉजी लानी है, मॉडर्नाइजेशन लाना है, जिससे कि ये पॉवर्टी है वो खत्म हो जाए. ठीक है, देयर आर डिफरेंट सो मेनी इश्यूज फॉर पॉवर्टी. पॉवर्टी के लिए कोई एक इशू काम नहीं करता, बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम पॉवर्टी के लिए रहते हैं. लेकिन किस तरह से हमको इससे निकलना है, इन प्रॉब्लम से निकलना है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए डेंजरस है. So we are facing this much. And last one is terrorism. Now terrorism is the biggest challenge to India's internal security. It is a global problem and India is making efforts to end this terrorism. So terrorism is a major problem before our country. ये बहुत ही बड़ा एक biggest challenge है हमारे इंडिया के सामने, because every year so many common people
or innocent people are coming to the death because of this terrorism. टेररिज्म के कारण हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो इस मरते हैं इस टेररिज्म के कारण। जब टेररिस्ट आते हैं वो हल्ला करते हैं तो ये बहुत देश का नुकसान होता है, लोगों का नुकसान होता है। तो ये हमारे देश के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि हाउ वी हैव टू सिक्योर आवर देश, आवर कंट्री फ्रॉम दिस टेररिज्म। Okay, now our next point is that is human security. Now, what is human security? Human security means safety for people from both violent and non-violent threats. It is the condition of states of being characterized by freedom from pervasive, pervasive threats to people rights, their safety, and even their lives. Now, what is human security? In the post-war Cold War period, the concept of national security changed and become borders. So national security is not just the security of country but also of the people living in it, because security is ultimately for the people. Hence, human security level refers to human-centric thinking. It means what? What is human security? Human security is not only the matter of security of borders, not only the matter of security of boundaries or coastal area or space area or all these things. Security means to secure a common man by their rights, by giving them education. All these are the human security. So human security includes security of people, giving opportunity of education, health and development, give conducive environment to live a respectable life by overcome literacy, poverty, superstition, backwardness, and give protection of human rights of minorities. All these points includes in human security. इट मीन्स व्हाट कि ह्यूमन सिक्योरिटी हम किसको बोलते हैं? इट इज नॉट ओनली रिगार्डिंग टू बॉर्डर्स, बट इट इज रिगार्डिंग टू गिव अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन, दैट एजुकेशन फॉर ऑल, सब बच्चों के लिए। जैसे अब हमें मालूम है कि राइट टू एजुकेशन आरटीई जो आया है वो किसके लिए आया है? राइट टू एजुकेशन, एवरी चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड। हर चाइल्ड को एजुकेशन लेने का हक है और ये हमारी गवर्नमेंट बताती है कि हर बच्चे को जो एजुकेशन है वो मिलना चाहिए। सो एंड एवरी कॉमन मैन हैव टू बी हेल्दी। हर एक ने हेल्थ अच्छी रखनी है। इसलिए आपको मालूम है, जैसे हमने पढ़ा था पीछे कि इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन है, ये सब चीजें किस लिए होती है कि नेशन के अंदर सब लोगों ने हेल्दी रहना चाहिए। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं कि टीकाकरण होते हैं, अलग अलग जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको टीकाकरण किया जाता है। 9 डेढ़ 3 साल तक के जो बच्चे उनको टीके दिए जाते हैं, पोलियो ड्रॉप दिए जाते हैं, अलग अलग टाइप के हेल्थ सिक्योरिटीज दी जाती है। तो ये किसलिए कि कॉमन मैन की जो हेल्थ है वो हमेशा अच्छी रहे। एंड डेवलपमेंट इन व्हाट सेंस? टू डेवलप अ पर्सन, उनको हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए जाएं, उनको अलग अलग टाइप के स्कूल्स जो कॉलेजेस हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। तो ये सब उनके डेवलपमेंट में काम में आता है। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी विच इज गिवन बाय आवर गवर्नमेंट। तो इससे हम हमारी जो ह्यूमन सिक्योरिटी है वो हो सकती है। आफ्टर दैट, the concept of human security also includes the idea of a conducive environment should be created for everybody to live a respectable life by overcoming literacy, poverty, superstition, backwardness, etc. It means what? Ki it is not only with the help of education or health or development we can say that now the human is secure. No, for that it is very important to give a healthy environment, or we can say a helping environment to the common people or the citizen of people। उनको एक ऐसा environment दिया जाए जिसके अंदर वो एक respectful life जो है वो जी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि as you know, as we know that our nation is not one class नेशन।
हमारे अंदर एक एक ही क्लास है ऐसा नहीं है, हमारे इधर देर आर डिफरेंशिएशन। ओके, हम लोगों ने उसको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे क्लासेस में हमने अपने समाज को डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, कि एक लोअर क्लास का है, एक मिडिल क्लास का है, एक अपर क्लास का है। इस तरह से हमने क्लासेस में हमने हमने खुद ही अपने समाज को डिवाइड कर रखा है। लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर वो गरीब आदमी क्यों ना हो, लेकिन उसका लाइफ कैसा होना चाहिए, उसने अपनी रिस्पेक्टफुल लाइफ लाइफ जीनी चाहिए। ओके, ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश रहती है। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन को सिक्योरिटी देने के लिए ये रिस्पेक्टफुल लाइफ उनको मिलनी चाहिए, और इस लाइफ के लिए लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, दे शुड नॉट बी बिलो पॉवर्टी लाइन, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं जाने चाहिए, मतलब उनमें गरीबी आनी नहीं चाहिए, उनको वो सारी चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए जो उनको रोज या फिर उनके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशन, जो वो सुपरस्टिशन में रहते हैं, जो अंधविश्वास रखते हैं, उनमें से उन्होंने बाहर निकलना चाहिए। बैकवर्डनेस, जो वो पिछड़े जाति के लोग हैं, जो पिछड़ चुके हैं, जिनमें जहाँ कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे अभी तक डेवलपमेंट पहुंची ही नहीं है, जहाँ पे अभी तक लोगों को मॉडर्नाइजेशन मालूम नहीं है, टेक्नोलॉजी मालूम नहीं है, तो उन सारी बातों से लोगों को बाहर निकालना है और उनको एजुकेट करना है, उनको लिटरेट करना है। ओके, दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। ये एक मेन मीनिंग है ह्यूमन सिक्योरिटी का, कि उनको ना केवल अच्छा हेल्थ, अच्छा एजुकेशन या डेवलपमेंट देके हमको सिक्योरिटी देनी है, इवन दो हमको उनको एक रिस्पेक्टफुल लाइफ देनी है, और उस लाइफ के लिए उनको लिटरेट होना जरूरी है, उनके पास में पैसा होना जरूरी है, उनको अंधविश्वासों से बाहर निकालना है, और उनको पिछड़ा जातियों में से भी बाहर निकालना है। और इन सब चीज करने के लिए उनको एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। ओके, आफ्टर दैट ह्यूमन security necessitates the protection of rights of minority and weaker section. Okay, it is for the people who are from minorities, जो हमारे देश में माइनॉरिटीज है, मुस्लिम हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, ये लोग हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज है, मतलब इनके जो संख्या है, जनसंख्या हमारे देश में कम है। ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, उनके जो राइट्स हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है, उनको जो हक दिए गए हैं तो उनको हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। उसके साथ में ही जो वीकर सेक्शंस है, जो पिछड़े एससी एसटी जो हम बोलते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको हमें आगे लाना है, माइनॉरिटीज को आगे हमें आगे लाना है। और जब हम इन सबको आगे लाएंगे तभी हमारा जो एक कॉमन पीपल है, एक सिविल मैन है, वो जो है वो सिक्योर रह सकता है। जब तक हम उनके राइट्स को सिक्योर नहीं करते हैं, जब तक हम उनके इन सब बातों को, माइनॉरिटीज, वीकर सेक्शंस, इसको सिक्योर नहीं करते हैं, तब तक हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने ह्यूमन सिक्योरिटी जो है वो टोटली प्रोवाइड कर दी है। सो वी हैव टू डू वर्क ऑन दिस। ओके, नेक्स्ट वन इज challenges to human security. Now for human security again we have different type of challenges. Now the biggest challenge before human security, the biggest challenge of human security is that of terrorism. Terrorism targets common innocent people. It aims at creating terror or fear in their minds so that they begin to feel insecure. Thus, in order to protect human security, it is necessary to put an end on terrorism. So first, terrorism. What is terrorism? Terrorist acts and destabilize governments, undermine civil society, jeopardize peace and security, threaten social and economic development, and may specially negatively affect certain groups. All of these have to be direct impacts on the enjoyment of fundamental human rights. So what? टेररिज्म, टेररिज्म होता ही क्या है? टेररिज्म मतलब आतंक। जब किसी के, जो लोग कॉमन है, जो लोग
इनोसेंट है उन लोगों को डर दिखाना, और डर दिखा के उनको इस तरह से इनसिक्योर करना, उनको इस तरह से प्रेशराइज करना कि वो कोई भी गलत काम करने को तैयार हो जाए, दैट इज टेररिज्म। ठीक है, टेरर मतलब डर। ठीक है, तो टेररिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेररिज्म? टू क्रिएट टेरर इन इन द माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के दिल में नहीं, उनके दिमाग में डर बनाना, तो इसी को हम टेररिज्म बोलते हैं। और जैसे अभी हमने सुना ही है कि टेररिज्म के कारण, इन टेररिस्ट के कारण हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और बहुत सारे लोग, हजारों लोग हर साल इन टेररिस्ट के शिकार होते हैं। बहुत सारे फैमिलीज जो है वो उद्ध्वस्त हो जाती हैं इस टेररिज्म के कारण। सो दिस इज द फर्स्ट चैलेंज बिफोर आवर ह्यूमन सिक्योरिटी। हमारी ह्यूमन सिक्योरिटी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है इस टेररिज्म का। सो वी हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस टेररिज्म। तो टेररिज्म के अगेंस्ट हमको फाइट करना है। ओके, सेकेंड वन इज पॉल्यूशन is the another third before human life। ह्यूमन लाइफ के सामने, मतलब मनुष्यों के सामने सब दूसरा नंबर का पॉइंट जो है वो है पॉल्यूशन। नाउ इन इंडस्ट्रियल कंट्रीज वन ऑफ द मेजर थ्रेट्स इज एयर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग caused by the emission of greenhouse gases in another environment security issue। Okay, this pollution, now pollution, as we know, there are different types of pollution. Air pollution is there, water pollution is there, everywhere pollution is there, and this pollution creates a third before human life। एक डर बना दिया है कि पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन के कारण बहुत सारे नुकसान होते हैं, लोगों को अलग अलग बीमारियां हो जाती है। ठीक है, हमको पीने के लिए अच्छा पानी नहीं मिलता, हमको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती, हमको सांस लेने के लिए अच्छी हवा नहीं मिलती। तो हाउ कैन वन ह्यूमन कैन लिव इन दिस पॉल्यूटेड कंट्री? ऐसा अगर पॉल्यूटेड कंट्री रहेगा तो लोग कैसे रहेंगे वहां पे? और इस तरह से पॉल्यूशन जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है ह्यूमन सिक्योरिटी के सामने, कि किस तरह से पॉल्यूशन अगर होगा, पीने का पानी खराब है, रहने को जगह नहीं है, खाने को फूड भी पॉल्यूटेड है, तो ये सब अगर चीजें हमें नहीं मिलेंगे तो ह्यूमन लाइफ हो ही नहीं सकती। तो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम बिफोर human life। Third one is diseases like AIDS, chikungunya, swine flu, Ebola have present a big challenge. Protecting human beings from such diseases is also considered as a factor of human security. And with this plus one, do this corona is also a type of disease before us, and we are challenging. Okay, we are defending from these type of diseases. So some health problems, in particular infection diseases, outbreaks are the threat to human security because they can result in too many deaths and or infect too much damage worldwide। ओके, डिसीजेस अलग अलग टाइप की बीमारियां हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एड्स है, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, एबोला, नाउ कोरोना, all these are the, or we can say in the, all these are the infections। ये सारे इन्फेक्शन है, इन्फेक्शियस डिसीज है जो बहुत ज्यादा प्रमाण पे या फिर तौर पे हमारे देश में जो है वो फैल रहे हैं, और इसके कारण हमारा देश जो है, अवर ह्यूमन लाइफ इज इन डेंजर। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ challenge before our human security। So we had discussed about the challenges to Indian security. After that, we had discussed about human security, and after that, challenges to human security. So with this, we have to end our lesson. Is any problem with this chapter?